الدین الخالص. ہم لوگ ایک تاریخی پروگرام میں الحمدللہ شریک ہیں، اور میں مسلسل آپ کے بیچ 2 سالوں سے، یہ تیسرا سال ہے میرا، میں آ رہا ہوں. آج میں جو چند منٹ مجھے ملے ہیں، میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت کس سے، کیسی اور کیوں. یہ 3 سوال ہے. محبت کس سے، کیسی اور کیوں. محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کی پریبھاشا کیا ہے؟ محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں کہ محبوب کو چاہنا، اس کی نفرت سے بچنا، اور محبت کے بدلے محبت کی خواہش رکھنا، اس کو محبت کہتے ہیں. شرعی مفہوم یہ ہے، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السراج الوحاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پر لکھتے ہیں، محبت در حقیقت دلی میلان کا نام ہے. یعنی دل جس کے طرف مائل ہو جائے یہی محبت ہے. کبھی یہ دل کا میلان خوبصورت چہرے کی طرف ہوتا ہے، یعنی کوئی بہت خوبصورت ہو، کوئی حسین و جمیل ہو، لوگ اس کی خوبصورتی سے محبت کرنے لگتے ہیں. نواب صدیق حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ کبھی یہ دل کا میلان اچھی آواز کی طرف ہوتی ہے. کسی کی آواز آپ کو پسند آ جائے، آپ اس کے آواز کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی کبھی یہ دل کا میلان اچھے کھانوں کی طرف ہے. یعنی اگر کسی کو پسند آ جائے کہ مجھے فلاں کھانا کھانا، اب کوئی کہے کہ نہیں مجھے مٹن بہت پسند ہے، دل اس کی طرف پھر گیا. کوئی کہے نہیں مجھے بریانی صاحب بہت پسند ہے، کوئی کہے کہ نہیں مجھے چکن میں یہ آئٹم بہت پسند ہے. تو ایک طریقے کی یہ محبت ہے. علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، محبت عبادت کی بنیاد پر صرف اور صرف اللہ ہی سے ہے. یعنی عبادت کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہے تو وہ اللہ ہی کی خاطر ہو، یعنی اللہ کے لیے اس سے محبت کرے، اللہ کی محبت سے کوئی کمپرومائز نہ کرے. یہ محبت کی تعریف ہے. آئیے پہلے پڑاؤ پر چلتے ہیں. محبت کس سے؟ محبت کس سے کی جاتی ہے اور کس سے کی جانی چاہیے؟ نمبر 1 اللہ سے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نمبر 3 دین سے، پھر اس کے بعد بقیہ لوگوں سے، یعنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچے سے، چاچا سے، خالہ سے، دنیاوی ساز و سامان سے، مال سے، محلات سے، خوبصورت جگہوں سے. لیکن اس میں مرکزی کردار کیا ہے؟ محبت کس سے؟ اللہ سے، رسول اللہ سے، دین سے. اللہ کے نبی سے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے ذریعے سے اس محبت کے معیار کو بتلا رہا ہے. یہ محبت کس کے لیے ہونی چاہیے اور نہیں ہے تو کیا معاملہ ہے.
اللہ کہتا ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا کَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ختم ہو جانے سے، جس میں مندہ آ جانے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ حویلیاں اگر تمہیں اتنا زیادہ محبوب ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، کنبے قبیلے والے ہوں، مال و دولت ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، تمہاری تجارتیں ہوں، یہ تمام چیزیں اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اب تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ معیار سمجھا آپ نے؟ محبت کس سے؟ اللہ سے ہونی چاہیے، رسول اللہ سے ہونی چاہیے، دین سے ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اگر آپ کو کوئی نہیں محبت ہے، آپ کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، نبی کے فرمان سے محبت نہیں ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے محبت ہے، تو یہ بھی وبال جان ہے۔ آئیے قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے دلوں میں منچاہی چیزوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ یہ ہے کیا چیز دنیا کی محبت؟ ہم جس سے چاہتے اس سے محبت کرتے ہیں، ہم جہاں چاہتے وہیں اپنا دل پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں منچاہی چیزوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، اس میں عورت کی محبت، آدمی عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور عورت اس امت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب عورت کی محبت میں اور تفصیل میں نہ جا کر بیوی کی محبت لے لیجیے۔ آپ بیوی کی محبت میں دیکھ لیجیے کیا کچھ نہیں کرتے، ماں سے جھوٹ بولتے ہیں، باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ماں کو تانا دیتے ہیں، باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بہنوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، بھائیوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اسی گھر کے اندر جہاں پر آپ کا بچپن بیتا ہے، جہاں پر آپ کے باپ نے آپ کو انگلیاں پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، جس گھر کے اندر آپ ٹھوکر کھا کر گرتے تھے، ماں دوڑ کر آیا کرتی تھی، باپ دوڑ کر آیا کرتا تھا، لیکن اس بیوی کے آنے کے بعد اسی گھر میں آپ اکیلے دوسری طرف جا کر کھاتے پکاتے۔ یہ بیوی سے محبت کوٹ کر بھر دی گئی۔ آگے اللہ کہتا ہے اولاد کی محبت، وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، تمہارے جمع کیے ہوئے خزانے سونے چاندی کی محبت۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ کہتا ہے پسندیدہ سواری کی محبت، یعنی صاحب کسی کو کوئی گاڑی بہت پسند، آپ گھوڑے کا زمانہ تو ہے نہیں، اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا، کسی کو کوئی گاڑی پسند آ جائے، یہ گاڑی بہت اچھی ہے، گرچہ اوقات میں نہیں ہے لیکن اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایک آدمی سائیکل سے جا رہا ہے لیکن اگر کسی کو دیکھ لے کہ بہترین سپر اسپلینڈر گاڑی سے جا رہا ہے، چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہو جائے۔ ایک محبت، ایک لگن اس کے دل کے اندر ہے۔ ایک بائک والا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کوئی فارچونر سے جا رہا ہے، ارے یار کتنی بہترین گاڑی ہے، یہ میں چاہتا ہوں کس طریقے کی گاڑی میرے یہاں ہو جائے، یہ دل کے اندر بھر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے والانعام، چوپایوں کی محبت، کھیتی کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، جتنی فہرست اللہ نے گنائی، کہا یہ دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف آیت نمبر 46 اٹھائیے، اگر اللہ کے علاوہ، محمد رسول اللہ کے علاوہ، دین کے علاوہ اگر آپ کے اندر محبت بھر گئی ہے دنیا کی چیزوں کی، اللہ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی چیزیں محض ایک دھوکہ، ایک زینت ہے اور کچھ نہیں ہے۔
इसमें भलाई नहीं है, तुम्हारी एक जीनत है। मेरे भाइयों, क्या पता लगा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? आपको याद हुआ मोहब्बत किससे होनी चाहिए? बोलिए। यहां पर अगर आप आए हुए हैं तो कुछ हासिल कीजिए। मोहब्बत किससे? आप बता रहे थे किससे? अल्लाह, अल्लाह के रसूल से और दीन से। ठीक, एक पड़ाव पार कर लिया। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत का मियार क्या होना चाहिए? मोहब्बत करे किस हद तक? इस मोहब्बत में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का नंबर है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करना ईमान का तकाजा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत किए बगैर तौहीद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? हम अल्लाह से भी मोहब्बत करना चाहते हैं और तौहीद को छोड़कर दूसरों से भी मोहब्बत करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं रहमान भी खुश रहे और शैतान भी खुश रहे। अल्लाह को भी अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह तू ही दाता है, अल्लाह तू ही दस्तगीर है, अल्लाह तू ही गौस है। लेकिन हम गौस किसी और को बनाए हुए हैं, हम दस्तगीर किसी और को बनाए हुए हैं, बेटा चाहिए कहीं और जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद में आड़ आ रहा है, रुकावट है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत मुकम्मल करना चाहते हो तो अपने दिल के अंदर ये बैठा लो, हर चीज का मालिक अल्लाह है, देने वाला, लेने वाला, बीमार करने वाला। दुनिया के जितने भी हरकतों सकनातों, चाहे समंदर के तह में मछलियां क्यों ना हो, आसमान की बुलंदी पर उड़ने वाला शाहीन परिंदा क्यों ना हो, ये तमाम हरकत और सकनात का मालिक कौन? कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। यह हमारा ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और याद रखिए, अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में जिस कदर घुस जाएगा, याद रखिए ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत उतना ही ज्यादा उसको महसूस। और एक बंदे के ऊपर ये लाजिम है, जरूरी है कि अपने आप को अल्लाह के लिए बिल्कुल झुका दे। अल्लाह का जहां हुक्म पाए, अल्लाह के बारे में जहां सुने कि मेरे रब का ये फरमान है, वहां पर अपने सर को झुका दे, वो फरमान मान ले। और इसी चीज को अगर हम कर लेंगे तो याद रखना हमारा ईमान भी मुकम्मल है, हम मोहब्बत में भी सच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 165 में इस चीज की गवाही देते हुए अल्लाह कहता है, व मिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि, कि जो बाज लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और वो फिर अल्लाह से मोहब्बत किस हिसाब से करते हैं? कहुबिल्लाह, ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह गारंटी दे रहा है, अल्लाह कह रहा है कि याद रखो, जितने भी लोग हों, जितने भी दाता को मानते हों, जितने दस्तगीर को मानते हों, जितने गौसे आजम को मानते हों, जितने भी अजमेरी को मानते हों, चिश्ती को मानते हों, कादरी को मानते हों, कहीं देवी देवताओं को मानते हों, कहीं जाकर डुबकी लगाने वाले हों, कहीं जाकर माथा टेकने वाले हों, कहीं जाकर सूर्या चढ़ने वाले हों, इनकी मोहब्बत उतनी सख्त नहीं हो सकती जितना एक तौहीद वाला, जितना एक ईमान वाला, जिसके अंदर मुकम्मल ईमान है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह से मोहब्बत है, जिसके दिल के अंदर एक लगन है, हर चीज का मालिक अल्लाह है, हर चीज का राज़िक अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अल्लाह, बीमारी खत्म करने वाला अल्लाह। जितनी इसके अंदर मोहब्बत होती है, दुनिया के किसी कायनात के अंदर किसी शख्स के अंदर इतनी मोहब्बत नहीं है। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की मोहब्बत सबसे सख्त होती है। इसी तरीके से नंबर 2, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। मोहब्बत कैसी की बात हो रही है? अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कैसी मोहब्बत हो? अल्लाह के बाद इस कायनात के अंदर अगर सबसे पहले कोई मोहब्बत का हकदार है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। क्यों? इसलिए कि वो जात है जिस जात को अल्लाह ने अपने साथ मिला लिया। इस जात को अल्लाह ने अपने नाम के साथ मिला लिया है। कैसे? एक आदमी अगर कहे कि मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे मुसलमान होना, तो उसे सबसे पहले अल्लाह की गवाही दे दी, फिर उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे, तब ईमान मुकम्मल है। यहां पर अल्लाह ने मिलाया। अल्लाह के बाद मोहम्मद
रसूलुल्लाह से मोहब्बत। हम देखते हैं मस्जिद की मीनारों से सदाएं आती हैं, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहने के बाद कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने हर जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अपने नाम के साथ मिला लिया है। इसलिए इस कायनात के अंदर अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती है जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत जो है ये ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। बुखारी की हदीस देखते हैं, हदीस नंबर 14, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फवल्लज़ी नफ्सी बियदी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने औलाद से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। मोहब्बत कैसी? मोहब्बत ऐसी कि बाप से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा। अल्लाह के नबी किस बात की कसम खा रहे हैं? फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत इस तरीके से ना करे कि दुनिया के अंदर उसके औलादे मौजूद हैं लेकिन मैं उससे ज्यादा अजीज हूं, उसके बाप मौजूद है लेकिन मैं उससे ज्यादा अजीज हूं। उठाइए मुस्लिम शरीफ की एक हदीस, हदीस नंबर 44, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन नास अजमईन। अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई भी बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कोई भी बंदा उस वक्त तक हकीकी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके अहलो अयाल से, उसके माल से, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब और पसंदीदा ना हो जाऊं। जरा आप अपने गिरबान में झांकिए, आज हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत है? हम सवाल का जवाब ढूंढ रहे, मोहब्बत कैसी? उस सवाल का जवाब यह है कि मेरे नबी कसम खाने के बाद कह रहे माल से वालिद से ज्यादा, औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा और इसी तरीके से दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला हो जाए। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। आज है, हम कोरे हैं इसमें। अगर हम इस चीज को देखें ना तो हर शख्स इस मोहब्बत के मामले में नंगा है। आज मोहब्बत रसूल का दम भरते हैं हम कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। कहां जाते हैं उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत जब नबी के नाम पर, नबी के दिन पर अमल करते हुए नबी की शरीयत को छोड़ देते हो। इस नबी का कलमा, जिस नबी का कलमा पढ़े हो, कलमा पढ़ने के बावजूद तुम नबी के लिए वो काम नहीं करने को तैयार होते जिसे नबी ने अपनी सुन्नत कहा है, जिसे नबी ने अपनी आंखों के ठंडक गर्दाना है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में रुकने का हुक्म दिया है। आपकी मोहब्बत कहां है उस वक्त? एक जलीलुल कद्र सहाबी का वाकया सुनिए। बुखारी में यह हदीस 6632 नंबर की, हजरत उमर बिन खत्ताब हजरत अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ अखज़ बियदि उमर बिन खत्ताब फ़क़ाल लहू उमर या रसूल अल्लाह। कहते हम कहीं जा रहे थे, अल्लाह के नबी साथ में थे और अल्लाह के नबी के हाथ में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ है। फ़क़ाल लहू उमर, हजरत उमर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। अल्लाह के नबी, मैं आपको दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं इल्ला मिन नफ्सी, लेकिन ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता हूं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना सुनना था, अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वल्लज़ी बियदी नफ्सी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है। ऐ उमर, अभी तुम मोमिन नहीं हो। ये कौन है? उमर इब्न खत्ताब, ये वही है कभी कभी मशवरा दिया करते थे, अल्लाह के नबी ये होना चाहिए, लेकिन नबी मशवरा नहीं मानते थे। अर्श से वही आती थी, ऐ मोहम्मद, उमर इब्न खत्ताब का ये मशवरा सही है, ये वही सहाबी रसूल है। नबी ने जब हुक्म दिया कि मुझे जंग के लिए माल चाहिए, घर के अंदर जाते हैं, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ते हैं और आधा मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में लाकर
रख देते हैं। ये वही साहबी रसूल है जिन्हें अल्लाह के नबी ने कहा था, ऐ उमर इब्न खत्ताब तुम जन्नती हो, लेकिन अल्लाह के नबी आज कह रहे हैं कि ऐ उमर अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हो। क्यों? इसलिए कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत ना करे। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, फकाल लहू उमर फइन्नहु अलान, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वल्लाहि ला अंता अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, ऐ अल्लाह के नबी अब मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ उमर अब तुम मोमिन कामिल हो गए। हम कहां हैं? हराम का हम खा रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी हम मार रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि उनका पसीना सूखने से पहले दे दो। और इसी तरीके से बहनों का हक हम मार रहे हैं, दाढ़ियां हम छिलवा रहे हैं, और इसी तरीके से फहश काम हम कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हम कामिल मोमिन हो गए। नहीं, अभी कामिल। एक हदीस और देखिए, बुखारी की हदीस 16 नंबर की हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलासुन मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 चीजें ऐसी है अगर जो किसी के अंदर पाई जाए तो उसने ईमान की मिठास पाली, ईमान की हलावत पाली। उसमें से पहली चीज यह अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहु। उसमें से पहली चीज यह है कि अल्लाह और उसके रसूल से दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हो। अगर कोई किसी शख्स के अंदर यह बात पाई जाती है तो उसने ईमान की चाशनी पाली, ईमान की मिठास पाली। मेरे भाइयों, ये है मोहब्बत। बकिया लोगों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से कोई कमी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से भी कोई कमी नहीं। यानी इन दोनों की मोहब्बत जो है वो बाकी रहे। और इसी तरीके से दीन से मोहब्बत, इसके अलावा आप मां से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आप बेटों से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आप बीवी से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। दुनिया की चीजों से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आप अपने महल्ला से मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, इनकी मोहब्बत पहले होनी चाहिए। सहाबा की जिंदगी उठाकर देखिए, सहाबा नबी के लिए क्या नहीं करते थे, अल्लाह के फरामीन को मानने के लिए क्या नहीं करते थे, दीन के लिए वो क्या क्या नहीं किए। बहुत सारे वाकयात तारीख की किताबों में हैं। आइए एक वाकया मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर जिक्र करता हूं। सुलह हुदैबिया का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को मक्का वालों की तरफ सफीर बनाकर भेजा कि जाइए उनसे मामला तय कीजिए। ये जा रहे हैं मक्का की तरफ। मक्का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चलकर आए, चले मक्के के अंदर उम्रा करें, जाकर तवाफ करें। मुसलमानों का जम्मे गफीर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सबके दिल में यही ख्वाहिश है कि काश मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हम जाए, काबे का तवाफ कर लें। इधर अल्लाह के नबी हजरत उस्मान को रवाना कर रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, इधर सहाबा किराम के दिल में ख्वाहिश जाग रही है कि काश उस्मान की जगह पर हम होते, क्योंकि उस्मान तो अब जा रहे हैं, वहां पर जाने के बाद तवाफ तो जरूर करेंगे। लेकिन इधर दिल के अंदर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के अंदर हलचल कुछ और है। मक्के के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर तमाम बातें होती हैं। बात होने के बाद वो मुशरिकीन मक्का कहते हैं, ऐ उस्मान गनी आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आपकी शराफत का क्या कहना, आप मक्के के अंदर आ ही गए हैं, तो आइए अब काबे का तवाफ कर लीजिए। जरा गौर से सुनिए हजरत उस्मान गनी क्या जुमला कहते हैं। आज हम थोड़ी सी मफाद के लिए नबी का दामन छोड़ देते हैं, दुनियावी फायदे के लिए सुन्नत को बाला ताक रख देते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए, सीरत की किताबों में ये वाकया आज भी मज़कूर है। हजरत उस्मान गनी से कहा गया आप मक्के के अंदर आ ही गए हैं तो अब तवाफ कर लीजिए। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मुझे ये गवारा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं खाने काबा का तवाफ करूं। मेरी ख्वाहिश ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले तवाफ करे, उसके बाद मैं तवाफ करूंगा। ये मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। आज जरा सा फायदा जहां दिख जाए ना, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जाने दो बालका। जरा और आगे बढ़िए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का एक वाकया बुखारी में 1351 नंबर के, कहते हैं कि जंगे उहुद का मौका है। मेरे वालिद बुलाते हैं अब्दुल्लाह बिन अम्र, कहते हैं कि जाबिर सुनो, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि कल जब जंग के मैदान में मैं जाऊंगा
तो सबसे पहले शहीद होने वालों के सफ में मैं रहूंगा। ऐ जाबिर सुन लो, इस कायनात के अंदर मैं अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए जरा मिसाल देखो। ऐ जाबिर सुनो, इस कायनात के अंदर अगर मुझे किसी जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। और याद रखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई जात है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा करीब है, जो सबसे ज्यादा अजीज है, ऐ जाबिर वो तुम हो। याद रखो, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर फला फला के इतने कर्ज हैं, मैं शहीद कर दिया जाऊं, सफ़े अव्वल में मैं मारा जाऊं, तो उन लोगों का कर्ज अदा कर देना। और जाबिर याद रखना कि मैं अपने पीछे अपने बेटियों को छोड़कर जा रहा हूं, जो तुम्हारी बहनें हैं उनके हक का ख्याल रखना। ये मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। आज हमारी मोहब्बत डगमगाने वाली मोहब्बत है, बिन पेनी के लोटे वाली मोहब्बत है हमारी। जरूरत पड़े तो इधर भी, जरूरत पड़े तो इधर भी, जरूरत पड़े तो आगे भी, जरूरत पड़े पीछे भी। ये मोहब्बत हमारी। जरा तारीख की किताब को खोलिए, अल-बिदाया व निहाया हो जाए, सीरत इब्न हिशाम है, अर्रहिकुल मख्तूम हो, या फिर दीगर और किताबें, जरा और देखिए हजरत बिलाल हबशी का वाकया। कौन है? अल्लाहु अकबर। इनकी किस्मत का क्या कहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये अजान दिया करते थे, और जब अल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा करते थे, उस वक्त नबी का चेहरा सामने हुआ करता था। मौत का वक्त करीब है। इनकी बीवी कह रही है, अफसोस मेरे ऊपर बहुत गम का मौका आने वाला है। हजरत बिलाल हबशी का मौत का वक्त करीब है। एक शौहर की जुदाई एक बीवी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो कह रही है अफसोस मेरे लिए बहुत गम का मौका है, मेरे ऊपर गम का पहाड़ टूटने वाला है। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं कह रहे ये तो मेरे लिए खुशनसीबी है, मेरे लिए खुशी का मौका है कि मैं अब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करने वाला हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूं। उनकी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और इसी तरीके से दिगर और भी चीजें हैं। मैं तो बड़ा खुशनसीब हूं कि मैं अब इनसे मुलाकात करने वाला हूं। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत का मियार है। ऐसी होनी चाहिए मोहब्बत। और हमारी मोहब्बत कैसी है मेरे भाइयों? जरा और आगे बढ़िए आप। मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर लो मेरे भाइयों। अगर आप मोहब्बत कर लेंगे तो याद रखिएगा कि जन्नत में नबी के साथ होंगे आप। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। हदीस और देखिए, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, 3688 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक आदमी आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया अनिस्सा, कयामत के बारे में। क्या कहता है? फ़क़ाल मतस्सा, अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? इबरत है हमारे लिए हदीस मेरे भाइयों। जरा सोचिए मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आ रहा है, सवाल किस बात का हो रहा है? अल्लाह के नबी कयामत कब आएगा? अब अल्लाह के नबी सवाल करते हैं वमाज़ा आदत्ता लहा, ऐ साहबे रसूल बताओ, जब कयामत के बारे में तुम सवाल कर रहे हो तो तुमने उसके लिए तैयारी क्या कर रखी है? वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैंने कोई खास तैयारी नहीं की है, मेरी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है, लेकिन हाँ इस कायनात के अंदर मुझे अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी का इतना सुनना था। अल्लाह के नबी ने कहा अंता मन अहबब्ता, तुम में से जो शख्स जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उनका हश्र नस्र कयामत के दिन उनका साथ उन्हीं के साथ होगा। किन के साथ? तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हो, वो साहबी रसूल करें, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जो जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उनका हश्र नस्र उन्हीं के साथ होगा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि इस दिन से बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए कुछ नहीं था। क्यों? मुझे कभी किसी बात पर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे इस बात पर हुई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उनका साथ उन्हें नसीब होगा। मुझे सबसे ज्यादा इस कायनात के अंदर अनस बिन मालिक कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात महबूब थी, मुझे इस बात की खुशी हो गई मेरा हश्र नस्र मेरा साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है। उनके बाद अगर कोई जात थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की, मुझे इस बात की खुशी हो गई दुनिया में भी उनका साथ आखिरत में भी उनका साथ। उसके बाद कहते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, इस बात की खुशी हो गई कि इस धरती पर इस सरजमीन पर भी मैं उनके साथ हूं और कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में भी मैं उनके साथ हूंगा।
मेरे भाइयों, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। इसी तरीके से दीन से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? आज दीन से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? इस्लाम से मोहब्बत होगी हमको? बोलिए, इस्लाम से मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे हम? क्यों और कैसे? इस वजह से कि ये वो दीन है जिसके लिए हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए। ये वो दीन है जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब अबी तालिब की तकलीफें बर्दाश्त की हैं। ये वो दीन है जिसकी रजा की गारंटी अल्लाह ने दी है, जिसके से राजी होने की सर्टिफिकेट अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह मायदा आयत नंबर 3 में दिया। अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीन। अल्लाह ने क्या कहा कि नबी आज हमने आपके ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया। ऐ नबी, हमने आपके ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तमाम कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। यानी ये इस्लाम जो दीन है, हमें मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि अल्लाह को महबूब है। और मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, मैं उसका भी जवाब आगे देता हूं। जरा और आगे बढ़िए, कुरान की एक आयत सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 उठाइए। अल्लाह कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। जरा एक और आयत देखिए, सूरह आल इमरान आयत नंबर 85। अल्लाह कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह कहता है कि इस कायनात के अंदर अगर कोई शख्स इस्लाम को छोड़कर किसी और दूसरे दीन को मान लेता है, यानी इस्लाम के सिवा किसी और दीन को अपनाता है, वो अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई शख्स अपना लेता है, उसके लिए कयामत के दिन खसारा है। जरा सोचिए, अब अफसोस होता है कि आज इस दीन से हमें मोहब्बत कैसी है, आज कैसी मोहब्बत है हमें। आज दुनियावी फायदे के लिए इस दीन को छोड़ा जा रहा है मेरे भाइयों। दुनियावी फायदे के लिए इस दीन के फरामीन को बाले ताक रखा जा रहा है। आज की रात को देख लीजिए, क्या है ये दीन से मोहब्बत है? इसको आप दीन से मोहब्बत कहेंगे मेरे भाइयों? मेरे भाइयों, आप दीन से मोहब्बत कहेंगे इसको कि जिस काम को नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, जिस काम को सहाबा किराम ने नहीं किया था, जिस काम को ताबईन ने नहीं किया, जिस काम को बाद के असलाफ ने नहीं किया, लेकिन आज ये नाम और निहाद मुसलमान करते हैं और ये समझते हैं कि दीन यही है। मेरे भाइयों, दीन वो नहीं है। दीन वो है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर हो, जिससे अल्लाह राजी हो, वही दीन है। लेकिन आज हम लोग दीन हलवे में तलाश करते हैं, दीन हम कब्रिस्तानों में तलाश करते हैं। अच्छा, एक अजीब बात यह है कि आज हम ये हमारे भाई समझते हैं कि मुर्दे घर आते हैं, मुर्दे घर आ रहे हैं और जिंदे कब्रिस्तान जा रहे हैं। कैसा बुलावा है भाई! पकवान उनके लिए पका रहे हो, बुला भी रहे हो, खुद भाग जा रहे हो। बड़ी बड़ी कहानियां बयान करते हैं। अरे ये हलवा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खाया। कब खाया है? वो दांत टूट गए थे तब अल्लाह के नबी ने खाया था। मेरे भाइयों, वो मौका जो हुआ था वो शव्वाल के महीने में, शाबान के महीने में नहीं हुआ था। आज हमारा मामला ढकोसलाबाजी है। हम हलवा खाने के चक्कर में झूठ गढ़ते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, तरह तरह की मनगढ़ंत हदीसें पेश कर रहे हैं। अरे वो हलवा तो मरने वालों, जरा गौर से सुनो, ये हलवा दीन नहीं है, ये हलवा शरीयत नहीं है, ये हलवा तरीकत नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, सहाबा का तरीका नहीं है। ये हलवा गर्चे बहुत ताकतवर चीज हो सकती है, लेकिन दीन नहीं है। इसमें दीन मत तलाश करो, बस ये जानो कि हाँ, ये हलवा बस एक खाने की चीज है। एक आज मैं स्टेटस देख रहा था, माजरत के साथ, थोड़ा सा मैं वक्त अभी 5-10 मिनट ज्यादा ले सकता हूं, माजरत के साथ एक स्टेटस सुन रहा था। वो नाहंजार किस्म का, जाहिल किस्म का आदमी कह रहा है कि आज हम लोग हलवा बनाएंगे, ये लोग हलवा किताबों में ढूंढेंगे, हम कहेंगे कि कहां है हलवा, कहां है हलवा। अरे हलवा कढ़ाई में है, तुम किताबों में ढूंढ रहे हो। तुम्हारे कढ़ाई में जो हलवा है वो दीन नहीं है, और जहां हम हलवा ढूंढ रहे हैं वो दीन है हमारा, वो हमारा महबर है, वो हमारा मरकज है। ये जाहिल किस्म के लोग, चंद टके में बिकने वाले, अपने आप को अपने पेट पालने वाले मुल्ला, ये तरह तरह से
दीन का मजाक उड़ाते। क्या यही दीन से मोहब्बत है कि तुम हलवा के बारे में एक दीन, एक हदीस को, नबी के फरमान को तुम बरसरे आम लोगों के सामने आकर मजाक बना रहे हो? यह हलवा किताबों में ढूंढ रहे, हलवा तो कढ़ाई में है। कढ़ाई में आकर हलवा देखो, वो लोग थक गए ढूंढते ढूंढते, हम लोग खाते खाते थक गए। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह लानत भेजे से। मेरे भाइयों, जरा मैं आज हालात पर आता हूं। दीन से ये कैसी मोहब्बत है कि आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। कहां है दीन से मोहब्बत? कैसी होनी चाहिए थी मोहब्बत? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में हमने बताया उन्हें, हमने अल्लाह के बारे में बताया उन्हें, हमने कुरान को पढ़ाया, उनको नहीं पढ़ाया। आज देख लीजिए, कोई ज़ैनब है, कोई फातिमा है, कोई फला है, कोई फला है, नाम मुस्लिम है, निकाब है, लेकिन गैरों की बाहों में है, तिलकधारी लोगों के बाहों में है। उनकी मोहब्बत में फरेबता है। इस कैसी मोहब्बत, दीन से कैसी मोहब्बत की चंद दुनिया की चीज आसाइश के लिए तुम गैरों के बाहों में चले जाओ। मेरे भाइयों, बहुत दुख का मकाम है कि 90% 99% लड़कियां उनकी बाहों में जाती हैं, लेकिन जिंदा जावेद नहीं है, उनको मार दिया जाता। अभी चंद दिनों पहले किसी कॉलेज की वीडियो सामने आई थी कि वहां पर 3 लड़के एक लड़की को उठाकर लेकर जाते हैं, 3 दिन तक रेप करते हैं। वो निकाब पोश औरत थी और उसके बाद उसका कत्ल होता है। मेरे भाई, उसके जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने शादियों को मुश्किल बनाया है। हमने ये कैसे दीन से मोहब्बत की है कि वो निकाह जो सबसे ज्यादा आसान था, वो शादी जो सबसे ज्यादा आसान, लेकिन आज हमने उसी को मुश्किल बना दिया है। मेरे भाइयों, ये शरीयत हो ही नहीं सकती जिस पर अमल करना मुश्किल हो। मेरे नबी ने कहा, इन्ना आज़म निकाही बरकतन ऐसरु मऊना, कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च किया जाए। आज मुहिम चलाई जा रही है, बड़े बड़े सरदार लोग मिलकर बैठ रहे हैं, वो सर जोड़कर कह रहे हैं, अरे ये नासूर बन चुका है। आपको सर जोड़कर अगर सोचना है तो बहुत पहले सोचना चाहिए था। ये नासूर अब अंदर तक जा चुका है। आप ऑपरेशन करिए, कई साल लग जाएगा। आपने तरह तरह के फार्मूले जो बनाए हैं कि बारात इतने होनी चाहिए, ये इतने होने चाहिए, वो इतने होने चाहिए। मैं एक सवाल करता हूं, अरे बनारस के चौधरीओं, अरे बनारस के महतो, अरे बनारस के सरदारों, अब ये बताओ जरा, आपने फार्मूले तो बना दिए, अब बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? आपने तारीख बताया नहीं कि एक रमजान से लागू होगा कि बाराती 25 होंगे, लड़की की तरफ से इतने कपड़े आएंगे, लड़के वालों की तरफ से इतने कपड़े आएंगे। ये अब बिल्ली आपने पैदा कर दिया है, तो इसके गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? खत्म कीजिए वो एक तारीख, इंतजार कीजिए। महतो है सरदार, चाहे वो लोहता के हो, अलीपुरा के हो या दीगर और जगह को हो, आप इंतजार कीजिए। लोगों से कहिए, आप लोग उस वक्त तक अमल नहीं करेंगे जब तक कि मैं अपने घर के अंदर एक शादी वो न कर दूं जो मैं फरमान जारी कर रहा हूं। जब ऐसी शादी हमारे यहां हो जाए तो आप लोग वैसी ही शादी करिएगा। मेरे भाइयों, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि बाज़ दफा ऐसा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, लेकिन लोगों ने अमल नहीं किया। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने किया तो सहाबा किराम ने आके किया। तो ऐ बनारस के चौधरीओ, ऐ बनारस के महतो, आप रुक जाइए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब आप अपनी बेटी की शादी ऐसी कर लीजिएगा, फिर सबके ऊपर ये लागू होगा। मैं भी आपके साथ हूं। और हां, मुझे जो सबसे अच्छी बात आपकी लगी है ना, वो ये लगी है, अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन इसमें जो गाने बजाने आ गए थे ना, आपने इस पर पाबंदी लगाई, बड़ी दिल से खुशी है। अल्लाह ताला आप लोगों के माल में बरकत दे, आपके उम्र को दराज करे, आपके नेक और साले बनाए, आपके गुनाह जो हो गए हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ फरमाए। ये सबसे बड़ी आपने रुकावट डाली और इस पर आप रुकावट डालिए। और मैं ये कहूंगा, खुद मैं अपने आप को भी शामिल करके और तमाम उलमाए किराम से कहूंगा, जिस घर से गाने की आवाज आ जाए मेहंदी के टाइम पर या किसी और टाइम पर, उस घर का जो भी दूल्हा हो या दुल्हन हो, वो निकाह मत पढ़ाइएगा। मौलाना गुफरान, ये बात आप भी सुनिए और बनारस के तमाम उलमा भी सुनिए, जिस घर से शादी के मौके पर गाने की आवाज है, जो वहां निकाह मत पढ़ाइएगा। मुख्तसर तौर पर मैं और बता दूं, मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, मोहब्बत की वजह होती है या तो किसी का एहसान हो, या तो इसी तरीके से किसी का अखलाक बहुत अच्छा हो, या इसी तरीके से रिश्तेदारी हो, या इसी तरीके से उसकी खूबसूरती की वजह से। ये 4 बिना पर हम किसी से मोहब्बत करते हैं। ये मौजू का आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, थोड़ा आराम से सुन लीजिएगा। मैं चंद मिनट आपके सामने और रहूंगा कि
या तो एहसान की वजह से, अखलाक की वजह से, खूबसूरती की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, इन चार बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है। और इन चारों चीजों की बुनियाद पर हम अपने माँ से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बीवी से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बड़ों से भी मोहब्बत करते हैं, अपने छोटों से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन चारों चीजों में अगर कोई सबसे ज्यादा हकदार है मोहब्बत का तो वो नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा अखलाकमंद थे, कुरान ने आपके अखलाक की गवाही दी। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, लोग आपकी खूबसूरती को देखकर दीवाना हो गए थे। आप इसी तरीके से बड़े एहसानमंद हैं, आपके एहसानात हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा हैं। आप ही के एहसान हैं कि जो आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आपने एहसान न किया होता तो 50 वक्त की नमाज पढ़ते पढ़ते ये अल्लाह वाले मर जाते जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी तरीके से आप के रिश्तेदारी के बिना पर आपसे हमारा एक रिश्ता बहुत बेहतरीन रिश्ता है, एक उम्मती का रिश्ता है। आप हमारे सरदार हैं, हमारे कमांडर हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा आप हमारे हकदार हैं। और ये मोहब्बत हम इस वजह से करेंगे, मोहब्बत की वजह क्या होगी? क्योंकि आपसे मोहब्बत करके हम अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हैं। अल्लाह कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ए नबी आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ये काफी नहीं है कि अल्लाह अल्लाह चिल्लाते रहो कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले फत्तबिऊनी, ए नबी जब तक वो आपकी इत्तिबा न कर ले। ये इत्तिबा किस मामले में? अखलाक के मामले में, किरदार के मामले में, तिजारत के मामले में, चलने के मामले में, फिरने के मामले में, उठने के मामले में, कारोबार के मामले में, हलाल और हराम के मामले में, हर चीज के मामले में नबी की इत्तिबा कर लीजिए। अल्लाह कहता है, अल्लाह गारंटी दे रहा है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसी तरीके से अगर हम नबी से क्यों मोहब्बत करें? हम नबी से मोहब्बत इस वजह से करेंगे क्योंकि हमें नबी के साथ हमें जन्नत में जाना है। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? हदीस है, कुल्लु उम्मतिन यदखुलून जन्नत इल्ला मन अबा वकीला मन याबा वकीला मन याबा क़ाल मन अतानी दखल अल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन जिसने मेरा इनकार किया वो नहीं जाएगा। सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के नबी किसने इनकार, कौन है जो आपका इनकार करे? अल्लाह के नबी ने कहा, जो मेरी इताअत कर ले, दाढ़ी रखने में नबी की जो इताअत कर ले वो जन्नत में जाएगा, कारोबार के मामले में नबी की इताअत कर ले वो जन्नत में जाएगा, जो रिश्तेदारी निभाने के मामले में नबी की इताअत कर ले वो जन्नत में जाएगा, जो मजदूरों का हक ना मारे वो जन्नत में जाएगा, जो मजदूरों के मजदूरी मारे हुए अगर वापस कर दे वो जन्नत में जाएगा, जो बहनों का हक देगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन जिसने इनकार कर दिया, जो नहीं मानता है, यही लोग इनकार करने वाले हैं, ये लोग जन्नत में जाने वाले नहीं है। माजरत के साथ मैंने वक्त ज्यादा ले लिया। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमने जितनी बातें कही है, हमने कही और सुनी है, इलाहुल आलमीन पहले मुझे, उसके बाद में तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना, हम सबको जब तक जिंदा रख, ईमान वाला बना के जिंदा रख। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।